Hello everyone. As you know, nowadays we are discussing class 10th first chapter, that is a letter to God. A letter to God. Okay. Here guys, this chapter is written by G.L. Fuentes. Okay. As you know, I am going to tell you that before today's it was instruction that a teacher should not teach in Hindi. So I was not permitted to speak in Hindi, but today I was granted to speak in Hindi. But today I am going to tell you a new thing, that is, nobody can do better if he or she is instructed by a lot of instruction. I repeat this sentence. If a person is surrounded by a lot of instruction, he or she can't give his her new thing. As you know that invention never comes without freedom. Invention never comes without freedom. Means in short, I wanna say that if you want a new thing, then you will have to give a freedom. If you never want to give a person freedom, you can't get a new thing. This is a universal law. Nobody can change it. As change is the law of nature. Change is the law of nature. Okay guys, you can understand, if you make a person instructed by your laws, your rules, he or she will do the work on the basis of your instruction, but you can't get the better because he or she is surrounded by your instructions, surrounded by your rules. He or she can't do better. But I know many students are unable to understand explanation in English. A person is unable to understand the explanation in English. He or she says that this is only reading. How you can say that this is only reading? If you are unable to understand this statement, you will say that this is only reading. You should try to understand this is only reading or this is explanation. Okay? So guys, today I will try to give my best so that you can understand properly. Okay? Come to the point. Come to the points. This story belongs to a farmer. This story belongs to a farmer. Students, be careful. This is a determiner. Okay? I is a determiner. You can also say this is a article and this is a noun, and this is also a noun. Okay? So here a letter refers to any kinds of letter. A letter refers to any kinds of letter. But here it is clear that a letter is written on what is the base of a letter for writing. It is not clear, but you can say that a letter is written to God. Okay? So हम लोग एक चीज को ध्यान देंगे, जैसा कि आपका टाइटल ही दिया हुआ है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड कोई पत्र लिखा जाता है। पत्र किस सब्जेक्ट पे होता है?
ये आपके टाइटल के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं है, बट हाँ इतना तो जरूर क्लियर है कि ये लेटर गार्ड को लिखा जाता है। अब बात आती है ये लेटर का कोई ना कोई राइटर होगा, ठीक है। राइटर मीन्स लेटर लिखता कौन है, एक फार्मर है। ध्यान दो बेटा, लेटर को लिखने वाला एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है। ओके, इन सम बुक्स its pronunciation you will find lencho and in some books you will find lenko. Okay, so it doesn't matter. तो इतना क्लियर हो गया, एक फार्मर है लेंचो और लेंको जो एक लेटर लिखता है किसको, गार्ड को। अब ये दोबारा फिर प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो कोई ना कोई रीजन है, ऐसे मैं फ्री में टाइम नहीं है कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग क्लास 10th में हैं, मैं एक टीचर हूँ एंड टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट ही और शी शुड गिव हिज बेस्ट, हर बेस्ट फॉर हिज स्टूडेंट्स। ओके, सो एक कोई ना कोई रीजन है, रीजन ये है कि वो लेटर लिखता है गार्ड को, लेटर लिखने वाला फार्मर है और उस फार्मर का नाम लेंचो है। क्यों लिखता है, रीजन ये है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात होती है जब उसकी फसल बहुत ही अच्छी रहती है। बट कहानी के पहले थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, लेंचो जो है ये ना कि फार्मर है बल्कि हार्ड वर्किंग फार्मर है, हार्ड वर्कर है। किसके बारे में, अबाउट हिज फार्मिंग, बहुत कठिन मेहनत करने वाला ये पर्सन होता है। इट इज शोज दैट हार्ड वर्कर्स ऑलवेज रिवार्डेड, बट in this age you can't say that all hard workers always rewarded, sometimes it is find false. Hard worker always punished and the lazy person who never do anything, they always be praised by someone. But इतना तो पता चल गया, लेटर लिखने वाला फार्मर होता है, फार्मर का नाम क्या है, लेंचो, वो एक हार्ड वर्कर है। अब हम लोग उस मैटर पे चलते हैं, लेटर लिखता क्यों है, रीजन क्या होता है। रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक टाइम आता है जब वो उसकी फसल को, क्रॉप्स को वाटर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, वाटर की। तो देखते हैं, इन पास्ट टाइम वी कैन से दैट फार्मर्स वर डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट्स। जो फार्मर्स होते थे क्लाइमेट्स पे डिपेंड करते थे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग वो अपने खेत में जाता है, एज ही यूजुअली यूज टू डू, जैसा वो अक्सर किया करता था। तो देखता है नॉर्थ ईस्ट साइड से उसको ढेर सारे क्लाउड्स दिखते हैं और वो क्लाउड्स शो करते हैं कि शायद बारिश होने वाली है। जब इसको ये लगता है शायद बारिश होने वाली है और हमारी फसल को पानी की ज़रूरत भी है, तो अपने वाइफ को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि शायद बारिश होगी। उसकी वाइफ कहती है हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो बारिश होगी। उसी समय जैसे बारिश शुरू होती है, तैसे कुछ जो यंग बॉयज रहते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं उस रेन का एंजॉय करने के लिए। जब बारिश शुरू होती है तो सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन शीघ्र ही वो बारिश हेड स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। हेड स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, पत्थर पड़ने लगते हैं और पत्थर इतना ज्यादा पड़ जाते हैं, एवरीवेयर देयर इज नथिंग ओनली हेड स्टोन। ओके, अब क्या होता है, उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। बारिश की जरूरत थी बट ओल पत्थर पड़ जाते हैं और उस हेड स्टोन की वजह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जब उसको पूरी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है तो उस समय
वो दिमाग में सोचता है कि आखिर अब मेरी मदद कौन करेगा, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक परिवार है, और मेरे परिवार कैसे जिंदा रहेंगे। क्योंकि एक जो लीडर होता है वो अपने बारे में नहीं सोचता है बल्कि अपने फैमिली के बारे में सोचता है। दैट पर्सन इज अ लीडर, बट अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, दैट इज नॉट अ लीडर। ओके, सो यू कैन से दैट अब उसका दिमाग चाहता कि मेरी मदद इस समय करेगा कौन, तो उसका दिमाग गॉड की तरफ जाता है। ऐसा माना जाता है जब सारी चीजें व्यक्ति का अपना पावर, अपनी ताकत, सारे अप्रोचेज गायब हो जाते हैं, तब उसका दिमाग सिर्फ ईश्वर की तरफ जाता है। जब तक उसके अंदर पावर रहता है, उसका सब कुछ पॉजिटिवली रन करता रहता है, तब तक ये सोचता है कोई गॉड नहीं होता है। बट जैसे वो फंसता है तैसे करता है नहीं, गॉड होता है। तो ये लेंचो है जो हार्ड वर्कर है, उसका दिमाग गॉड की तरफ जाता है, और उस समय वो गॉड से 100 पीसोज मांगने की कोशिश करता है। 100 पीसोज इसलिए मांगता है क्योंकि उसको फसल को वापस बोना भी है, और तब तक अपने फैमिली को जिंदा रखना है जब तक दोबारा फसल आ नहीं जाती है। वो लेटर को लिखता है, लेटर को जाकर के पोस्ट करता है। पोस्ट करने का मेथड भी आपको बताया गया है। फिर लास्ट में क्या होता है, वो लेटर पोस्ट मास्टर पाता है। पोस्ट मास्टर लेटर को पा करके पहले तो हंसता है, लेकिन जब लेटर को पढ़ता है तो उस लेटर में डीप फेथ दिखता है। क्या देखता है, वो डीप फेथ देखता है। किसका डीप फेथ देखता है, वो डीप फेथ देखता है। किसका, लेंचो का उस लेटर में। To maintain the deep faith of a farmer, an idea stuck in the mind of postmaster. postmaster ध्यान देंगे। अब इस लेंचो का, राइटर का जो डीप फेथ है गॉड की तरफ, इसका फेथ मेंटेन रहे, इसके लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में आइडिया आता है। वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और अपने एम्प्लॉयज से कुछ पार्ट लेता है और टोटल कलेक्ट करता है, तो 70 पीसोज कलेक्ट कर पाता है। एक विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड उसने उस 70 पीसोज को और उस सिग्नेचर ऑफ गॉड को रख देता है एनवेलप में और भेज देता है। किसके एड्रेस पे, लेंचो के एड्रेस पे। लेंचो जब इस लेटर को पाता है तो देखता है कि 30 पीसोज कम है। वो दोबारा लेटर को लिखता है और फिर रिमेनिंग 30 पीसोज वापस मांगता है। इसलिए मांगता है क्योंकि उसको विश्वास था अगर ईश्वर ने 70 पीसोज भेज दिया तो 30 पीसोज वो क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये बैंक ऑफ रॉबर्स हैं, बंच ऑफ रॉबर्स हैं, लुटेरों के झुंड हैं। बैंक ऑफ रॉबर्स तो कहता है अब की बार जब 30 पीसोज को भेजना तो उसको बैंक पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर बैंक ऑफ रॉबर्स। ओके, सो यहाँ पे आपको दो चीजें बताई गई हैं। एक तो थीम इसकी हम देखेंगे, थीम हमारी क्या है। थीम हमारी ये होती है, एक तो डीप फेथ इन गॉड बताया गया है, ठीक है। दूसरी, व्हाट वाज द कंडीशन इन एंशिएंट टाइम फॉर द फार्मर्स, कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन एंशिएंट टाइम, ये बताया गया है, ठीक है। दूसरी बात, व्हेन अ पीपल कम्स इन प्रॉब्लम what types of faith he or she should have. So guys, your today's homework is learn short summary in your own words. Okay.